So real number, this is our chapter number 1. Okay, we will be starting with, this is chapter 1, real numbers. Okay, so basically in this chapter we have discussed only one topic till now. एक ही topic discuss किया था. You know that thing, Euclid's division lemma. Okay, this we have discussed, Euclid's division lemma. And why we use this Euclid's division lemma, हम लोग use क्यों करते हैं इसको? To find HCF, sir. Yes, to find the HCF, or otherwise to represent the number in the form of A equal to BQ plus R, है ना? By using Euclid's division lemma ना, we can represent a number in the form A equals to BQ plus R. इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनी इंटीजर. सी बेसिकली व्हेन एनी स्टेटमेंट दे आर आस्किंग अबाउट यूक्लिड्स, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. If you will find your textbook, you can mark it on page number. I'll show you. Four. Here, yes, you can see this theorem 1.1. Okay, you have to mark this theorem completely. Given positive integers a and b, there exist unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r. This is very important. So just mark in your textbook if you are having, or otherwise you can write in your notebook also. Okay, so this is what given positive integers a and b. In last class also I told you about this thing, that any positive integer, okay, any positive integer you can represent it in the form of any number 76. Okay, you are dividing it with any other number 5. So how you will be writing it? 75 divide by 5. So 5 1 ja, then how much you are left? Oh sorry, 76 is there. 76. Then 2 and 6. 5 5 ja, 25. Okay, we are having remainder how much? 1. Okay, so how we will One. be, in place of a, what we will be writing? That will be 76. 76. And in place of b, what we are having? 5. 5. And q 5. is what? 5, 15. 15. Plus r is 15. what? 15 plus 1. 1. Okay, so this is how we represent 1. any integer, any positive integer in the form of a equal to bq plus r. And the important thing in this one is what? This r will be what? Less than b always. हमेशा जो remainder आता है ना, वो divider से क्या आता है? कम आता है. यू विल नॉट गेट Yes, sir. एनी टाइम, ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग इधर ना 5 से डिवाइड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग दिस 5 एज रिमाइंडर. ऐसा कभी भी नहीं आएगा. जो भी रिमाइंडर आता है, पॉसिबल रिमाइंडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो पॉसिबल रिमाइंडर्स आते हैं वो हमेशा क्या होता है? इट इज लेस देन बी, लेस देन द डिवाइडर. जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, उससे कम ही आता है वो. ठीक है. सो एंड फॉर व्हाट वी आर यूजिंग दिस डिवीजन लेमा, हम यूज किस लिए कर रहे हैं? वी आर बेसिकली फाइंडिंग HCF ऑल्सो बाय यूजिंग दिस वन, है ना. इन आवर लास्ट क्लास आई टोल्ड यू हाउ वी आर फाइंडिंग द HCF. सी सपोज वी आर टेकिंग एनी टू नंबर, 36 I am taking and 798. These are two numbers I am taking, 36 and 798. We need to find the HCF. So how can we find the HCF of these two numbers? See, first thing, first step is what? विच नंबर इज ग्रेटर, है ना. फर्स्ट स्टेप चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है. सो 798, यू नो दिस इज ग्रेटर देन 36, सो यू विल बी मार्किंग लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. टू फाइंड द HCF, इट विल बी डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस. पेपर में आता ही है 2-3 मार्क्स में. टू फाइंड द HCF ऑफ एनी टू नंबर्स बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, सो just divide it. Now 798, this is the greater number, divide it by 36. 36 2 ja 72. Okay, so how much you are getting? 9 minus 2, it is 7, and then 8 again. 36 2 ja 72. So you are left with 6. Okay, this is the remainder you are getting when you are dividing it for the very first time. देखो, जब हमने फर्स्ट टाइम इसको डिवाइड किया ना, कंप्लीट डिवाइड होने के बाद हमारे पास सबसे पहले हमें इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखना है. सो व्हाट इज a वी आर हैविंग हियर? a is what? 798. 798. Okay, so we will be 798. writing here 798 equal to,
Then what is B we are having? 36. 36. Then Q is what? 22 22. plus R is what? 6. 22 Okay. 6. Then I told you, you have to repeat the process till you are getting R equal to 0. जब तक R 0. 0 नहीं आता है तब तक उसको repeat करना है. So now this 6 will be what? It will be divider. है ना, ये divider बन जाएगा. Yes. And what will be our dividend? 36. That will be 36. 36. So 6 6 ja 36. Okay. Now the remainder is 0. So now we will be writing it again. So it will be 36 equals to what? 6 multiplies 6 plus 0. So now the number that we have divided with means our divider. जिस डिवाइडर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है? 0. That becomes what? HCF. So HCF will be what? 6. Okay, so this 6. type of question is there in your textbook. Just try it, है ना, एक दो बार उसको ट्राई करना. और that is not that much tough. लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमने. Now moving to the next thing. See, some statement type questions are there in your exercise 1.1. Just coming to that one. Examples also very important, हाँ, बाद में उनको solve करना. Now see the second question here. What is the second question? Show that any positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. देखो इसने बोला है कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट विल बी ऑफ दिस फॉर्म, आइदर 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. कि कोई भी तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर है वो इस फॉर्म में आना चाहिए. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. सो हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इट? नाउ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स all the positive integers are in the form a equals to bq plus r. BQ Is plus it? R. यूक्लिड्स ने तो यही बोला ना, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यू कैन टेक इट इन द फॉर्म a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. नाउ वन थिंग in your question, just check what is the value of b they are giving to us. That is 6, 6, है ना, sir. क्वेश्चन में ही पता लग रहा है, बिकॉज विद द q के साथ जो उन्होंने वैल्यू वहां पे दिया हुआ है ना, in every part it is what? 6. You can see I am circling it with green color ना, वो देख सकते हो. So that means what? According to question, देखो यूक्लिड्स ने क्या दिया पहले, a equal to bq plus r, and we know from the question से ही पता लग रहा है that we are having the value of b as 6. So we can put here b equal to 6. ठीक है, हमने b की वैल्यू को 6 रखना है. Now if b is 6, a is equal to bq plus r, then what are the possible remainders? Tell me about possible remainders. क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 See, Sir, 0 0 1 2 3 yes, 4 if I am 5. dividing, देखो अगर मैं किसी भी नंबर को ना डिवाइड करता हूं बाय यूजिंग 6, तो मेरा पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएगा? अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, सपोज 36 है, वो कंप्लीट डिवाइड होता है, देन रिमाइंडर विल बी व्हाट? 0. या फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5. इज इट? दीज आर द पॉसिबल रिमाइंडर, 0 1 2 3 4 5. इनके अलावा कुछ नहीं आता है. ओके, यू कैन डिवाइड एनी नंबर. देखो कोई भी नंबर तुम उठा लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू एनी मीन्स कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इफ यू विल बी डिवाइडिंग इट विद 6 ना, तो हमेशा जो पॉसिबल रिमाइंडर्स आएंगे वो 0 1 2 3 4 5 यही आएगा. ठीक है, इससे अलग कुछ नहीं आता है. अगर किसी का रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पे 7 या 8 आ जाएगा ना, दैट मीन्स कहाँ पे जाना है उसको? थर्ड क्लास में. ठीक है, तो ऐसा होता है. तो पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी 0 1 2 3 4 5. नाउ इफ आई एम राइटिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, अगर सब कुछ यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं, देखो इफ आई एम राइटिंग a, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू ऑफ a की कोई वैल्यू नहीं है, बट इन प्लेस ऑफ b की प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 6. q इज, वी आर नॉट हैविंग एनी q, प्लस रिमाइंडर्स वी आर हैविंग. सो फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब हम r की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0. दैट मीन्स a विल बी व्हाट? 6q प्लस 0. करेक्ट? एंड व्हेन r इज इक्वल टू 1, देन a विल बी व्हाट? 6q plus 1. When r equal to 2,
A will be what? 2. 6q plus 2. Then R will be 3. 6q plus 3. 6q plus what? 3. R is 4. A is what? 6q plus 4. R is 5. A equal to 6q plus 5. These are all the possible cases. इनके अलावा कोई केस नहीं आएगा. These are the possible, because remainders, possible remainders हमारे पास क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5. So according to that, the possible cases that according to Euclids we are having is what? 6q plus 0, 6q plus 1, 2, 3, 4, 5. है ना? Now from all these विच आर डिविजिबल बाय 2, जो हमने यहाँ पे ना 6 केसेज लिखे हैं. देखो मैं यहाँ पे, ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस, थर्ड केस, देन फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन, देन सिक्स्थ वन. फ्रॉम ऑल दीज केसेज, ये हमारे पास टोटल 6 केस हैं. फ्रॉम ऑल दीज केसेज विच आर डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन कौन सा 2 से डिवाइड हो रहे हैं? देखो पहले वाले को चेक करते हैं, फर्स्ट वाले को. सो अगर तुम फर्स्ट वाले को चेक करोगे ना, इट इज व्हाट? A इक्वल टू 6q, बिकॉज 0 इज देयर, 0 का कोई मीनिंग नहीं है. देन कैन वी डिवाइड 6q बाय 2? हम डिवाइड Yes, कर sir. सकते हैं. सो दैट मीन्स Yes, sir. फर्स्ट केस इज डिविजिबल बाय 2. फर्स्ट वाला जो है वो डिविजिबल है. फर्स्ट इज डिविजिबल बाय 2, फर्स्ट वाला है. देन लुक फॉर द सेकेंड वन, 6q प्लस No, 1. देखो sir. 6q डिवाइड हो जाएगा बट 1 नहीं होगा 2 से. दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल. Now come to the third one, 6q plus 2. It is divisible because 6 is Yes, also sir. divisible, 2 is also divisible. Then fourth one, not No, sir. divisible. No, sir. 3 is there. Then fifth one, Yes, sir. divisible. Yes, sir. Then Yes, sixth sir. one, not divisible. No, sir. Now what you will be writing? देखो, first case, third case, and which one? Fifth. First, third, and fifth are divisible by 2. अब अगर 2 से डिवाइड हैं, दैट मीन्स दे आर व्हाट? पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, है ना? एंड Even integer. जो हमारे पास दूसरे हैं, कौन कौन सा? सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ 6. आर नॉट डिविजिबल बाय 2. ये डिविजिबल नहीं है 2 से. सो दैट मीन्स व्हाट? जो डिविजिबल नहीं होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, वो क्या होता है? ओड नंबर होता है. और जो डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है? इवन नंबर. सो वी कैन इजिली राइट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कैसी फॉर्म में आएगा वो? It will be 6q plus 1, 6q plus 3 or 2. 6q plus Plus 5. 5. समझ आया? देखो सेम करना क्या है, सिंपल. पहले तो ये देख लो क्वेश्चन में ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b यू आर हैविंग, है ना? b की वैल्यू कैसे पता लगती है? वट एवर इज रिटन विद q. यहाँ पे देखो q के साथ ना जो कुछ भी लिखा हुआ है, आइदर इट इज 3, 4, 5, कुछ भी, दैट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? b. उसको b की वैल्यू लेना है. देन राइट द पॉसिबल रिमाइंडर, वो तुम लोगों को खुद सोचना है, ठीक है? कि 0 से स्टार्ट करना ही है, हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? कुछ भी हो सकती है, बट पॉसिबल रिमाइंडर विल स्टार्ट फ्रॉम 0. नाउ इट कैन बी 0, 1, 2, है ना, एनी, बट इट विल बी लेस देन b. b से कम ही आएगा, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा कि वो b से ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है? इट विल बी ऑलवेज लेस देन b. एक बार क्वेश्चन रीड करो, उसने क्या बोला है? एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर. देखो सेकंड क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म व्हाट? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ओके, देन इट इज आस्किंग अबाउट ओड. ओड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, तुम लोगों को अच्छे से पता है वो. So that Yes, means sir. out of the 6 cases that we were having, हमारे पास टोटल 6 केस थे, उनमें से कौन कौन से ऐसे केस हैं जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं 2 से? आर यू गेटिंग ना? 2 से जो डिवाइड sir. नहीं हो रहे हैं, तुम देख सकते हो, जिसके लास्ट में +1 है, +3 एंड +5.
These are the cases that are not Yes. divisible by what? 2. 2. सो वी कैन राइट ना, लास्ट में हम लिख सकते हैं दीज आर द ओनली केसेस। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये 6q+1, 6q+3, 6q+5, these are the three cases that are not divisible by 2. So we will be writing these in the form of what? ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। देखो इसको ना समझ कैसे सकते हो, तुम ना कोई भी एक ओड नंबर ले लो, ठीक है। अगर तुम लोगों को कोई भी एक ओड नंबर, सपोज यू आर टेकिंग 15, ट्राई टू डिवाइड 15 बाई 6, 6 2 जा 12, वट इज द रिमाइंडर यू आर गेटिंग? 3। तो देखो यहाँ पे 3. हमारे पास ये जो 3 वाला केस था ना, दैट मीन्स व्हाट, ये ओड इंटीजर वाला केस है। नाउ टेक एनी अदर नंबर, सपोज यू आर टेकिंग 19, डिवाइड 19 बाय 6, सो 6 3 जा 18, what is the remainder we are having? 1. again when we are dividing any odd integer, जब भी हम कोई भी odd integer divide करेंगे ना, always we will be having what? remainder either 1, 3 or 5 when we are taking 6 as divider, ठीक है। जब हम 6 को लेंगे तब ये पॉसिबल केसेज आते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. अच्छा ये ना पता है 6th-7th में ही क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, मैक्सिमम और मिनिमम वाला। और हम लोगों को यहाँ पे देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, क्वेश्चन को ना लास्ट लाइन ध्यान से देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, एंड यू नो व्हेन मैक्सिमम इज देयर दैट मीन्स व्हाट वी विल बी फाइंडिंग? highest common factor, HCF. So there are two numbers, one is 616, one is 32. Try to find the HCF, that will be your answer. Okay, and give me your answer. Try to find the HCF. Sir, Okay, let us try to solve what HCF we are getting. We are having 616 and 32 है ना, so 616 is greater than 32, so we will be starting with division. 616 divided by 32, so it will be 32 1 ja, then how much, 11 minus 2 9, 29, and then 6, so it will go over 8 3 ja 24, 9, so 9 2 ja 18, 1 9 3 ja 2 88, so we are left with 8. Okay, so first statement that we will be writing here, a equal to bq plus r will be, it will be 616 equals to 32 multiply, what is value of q we are having? 19 plus r is 8. Okay, this is the first one, we are not getting r equal to 0. Now again what we will be dividing here with 8? 32, so 8 4 ja 32. Okay, so we are getting the remainder 0, that means 32 will be equal to 8 multiplied by 4 plus 0. Now with this 8 when we are dividing, we are getting our number remainder 0, so that means HCF will be what? 8. And this is the maximum number of columns also that is given in the question. Now उसमें दिया हुआ है what are the maximum number of columns in which they can march. And you have to see whenever you are getting maximum term ना, कभी भी ऐसा पूछा जाता है ना maximum या minimum, ये तो 6th-7th क्लास में ही हम सीखते हैं। For minimum we find LCM and for maximum HCF, highest common factor. Now moving to the next one, use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में। सो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसने बोला है कि अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ओके, एनी पॉजिटिव इंटीजर वी आर टेकिंग, इट विल बी ऑफ द फॉर्म व्हाट? आइदर 3m और 3m plus 1, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। देखो क्वेश्चन में ध्यान से ना उसका हर चीज पढ़ो। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे इस पे भी ध्यान देना है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका जब हम स्क्वायर करेंगे ना तो वो किस फॉर्म में आएगा? या तो 3m आएगा या फिर 3m plus 1 आएगा। ओके, सो दीज आर द पॉसिबल केसेज। नाउ हाउ वी विल बी सॉल्विंग, देखो स्टार्ट वहीं से करना है, अकॉर्डिंग टू
यूक्लिड्स, ठीक है। अब यूक्लिड्स क्या बोल रहा है, यूक्लिड्स ने दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ओके। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. Now the thing is we are not having any value of a because any positive integer can be there. Are we having any value of b? Yes, this 3 is the value of what? B. So in place of b, take b is equal to 3. b की वैल्यू को क्या लेना है? 3 लेना है. Now if b is 3, then what is the possible remainder we are having? Okay, so Zero, we will one, be two, writing zero, here one, two, three. possible remainders that will be 0, 1 or 2. These are the possible remainders we are having. Now one by one we will be looking for every possible case. जैसे last question में किया था वही same करना है. So starting with when r is equal to 0. जब r हमारा 0 हो जाएगा, then a will be equal to what? 3q plus 3a. 0. Now 3q plus 0, then it means what? a is equal to 3q only, है ना, because adding 0 to something will be same, the same thing will be there ना. So a equal Sir, to here 3q. m is equal to q na sir. Here the value of b is 3. Yes, b is what? 3. Okay, now see one thing. Sir, the m is Till now we m is haven't equal to done q. one thing. अब तक हमने स्केयर नहीं किया है, क्योंकि उसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. टिल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव इंटीजर. अभी तक हमने जो वहां पे बात की है ना, वी आर टेकिंग अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स. देखो यूक्लिड्स ने क्या बोला, यू कैन टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, इट विल बी ऑफ द फॉर्म a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना. लेकिन यूक्लिड्स ने कहीं भी स्केयर वाली बात नहीं बोली है. We are doing only for the positive integers but scare नहीं किया है. So we will be doing the scare of the first case we are having. First case is what? When a is equal to 3q. So if you are doing the scare of this case, so scare both Sir, sides. then Now if you are scaring sir, in with question both they don't sides, told. A. okay, दोनों sides scare करेंगे, it will be what? a scare. Then it will be A square equal to 9q square. q square. This is the first case we are having, a square equal to 9q square. Okay, but हमारा आंसर जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए? Either it should be 3m or 3m plus 1. आंसर तो इस फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन स्केयर करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है? इट इज 9q स्केयर. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3q स्केयर. इज इट करेक्ट? देखो ये जो 9q स्केयर है इसको हम क्या लिख रहे हैं? 3 इंटू 3q स्केयर. नाउ टेक दिस 3q स्केयर एज व्हाट? m. इसको क्या लेना है? m. सो देन आवर आंसर विल बी व्हाट? a स्केयर इज इक्वल टू 3m, वेयर m इज व्हाट? जहां पे m की वैल्यू हमने क्या ली है? 3q स्केयर. सो दिस इज द फर्स्ट केस दैट इज सोल्व्ड. फर्स्ट केस जब हमने सोल्व किया है तो हमारा आंसर किस फॉर्म में आ गया है? इट इज इन द फॉर्म 3m, क्योंकि आंसर जो है ना आइदर इट शुड बी इन द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. चाहे 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1, कुछ भी करके आंसर वही लेके आना है. ठीक है. नाउ Sir, why we took b as 3 sir? नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, अब क्या लेना है? व्हेन r विल बी इक्वल टू 1. दिस इज द सेकंड केस. सो a विल बी इक्वल टू व्हाट? 3q plus 3q plus 1. 1. Now again we have to scare, क्योंकि उसने बोला है scare of the positive. So that means if I am scaring it, it will be a scare, and this side we have to go for the identity. जब हम scare करेंगे ना, scaring both side, तो एक side में क्या बनेगा? Identity. So identity is which one? a plus b whole square. So it will be a square plus b square plus 2ab. So that means 3 3 जा 9q स्केयर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1. ठीक है, ये बनेगा. आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी a प्लस b होल स्केयर. इट इज a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर. ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है. इन प्लेस ऑफ a की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट किया है? 3q. ठीक है, यहाँ पे a की जगह 3q पुट किया. 3q स्केयर इज व्हाट? 9q स्केयर. Then in place of
हियर 2ab इज देयर ना, सो 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा 3q, 2 3 जा 6 एंड देन b इज व्हाट 1, सो 6 1 जा 6 एंड देन b स्क्वायर, b इज व्हाट वी आर हैविंग 1, सो 1 स्क्वायर विल बी 1. नाउ द थिंग इज इसको हम 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में कैसे लाएंगे. देखो a स्क्वायर इक्वल टू, क्या हम जो फर्स्ट टर्म है इधर, देखो फर्स्ट टर्म क्या है इधर 9q स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज व्हाट 6q. कैन आई टेक 3 कॉमन फ्रॉम बोथ? इफ आई एम टेकिंग 3 कॉमन, sir. व्हाट विल बी लेफ्ट Sir, 3q we can take स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2q 2. एंड sir. प्लस 1. देखा मैंने क्या किया है ना, जो स्टार्टिंग में हमारी 2 टर्म्स है ना 9q स्क्वायर एंड 6q, दोनों में से क्या कॉमन लिया है, आई एम टेकिंग 3 कॉमन, देन वी आर लेफ्ट विथ 3q स्क्वायर प्लस 2q. नाउ इस 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम क्या मान लेंगे m, सो इट विल बी a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज व्हाट, m क्या है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q. ठीक है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है हमारा आंसर ना या तो लास्ट में 3m आना चाहिए या फिर 3m प्लस 1. ठीक है, इन दोनों में से एक आना चाहिए, 3m आना चाहिए या 3m प्लस 1. फर्स्ट वाले केस में आंसर क्या था, इन फर्स्ट केस इट वाज 3m. ओके हाँ, सो आंसर आना चाहिए वंस 3m अदरवाइज 3m प्लस 1. देखो पता है कुछ भी कॉमन लो, कुछ भी करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके स्क्वायर की जगह क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ऐसा नहीं करना है. मतलब अपना प्रोसेस ठीक होना चाहिए, उसके बाद कॉमन क्या ले सकते हो, है ना, वो देखना है. देखो m तुम कुछ भी एज्यूम कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लास्ट में जब तुम कॉमन लोगे ना तो m की वैल्यू बहुत अजीब सी आएगी, तुम लोगों को लगेगा कि m क्या ले रहे हैं. ऐसा हो सकता है कुछ भी आए, बट आंसर जो है वो जो भी तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया है ना, आइदर 3m 3m प्लस 1 2m, कुछ भी आंसर वही आना चाहिए. ठीक है, तो उस तरह से एज्यूम कर लेना. अच्छा, अब हमारा लास्ट केस बचा हुआ है. लास्ट वन इज व्हाट, व्हेन r इज इक्वल टू 2, सो a विल बी इक्वल टू व्हाट 3q प्लस 2, है ना. अब a इक्वल टू 3q प्लस 2, इसमें भी स्केयर करना है पहले तो बोथ साइड, सो स्केयरिंग बोथ साइड्स, फिर से स्क्वायर करेंगे उसको, तो व्हाट इट विल बी a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, नाउ अगेन वी विल बी यूजिंग द आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी जो हमने पहले यूज किया था ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, वही यूज करना है. सो 3q स्क्वायर विल बी 9q स्क्वायर प्लस 2ab इज देयर, सो दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 12q प्लस देन 2 स्क्वायर विल बी 4. अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यू हैव टू राइट योर आंसर एज 3m और 3m प्लस 1. आंसर तो ये लेके आना है. अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, तो इसको कैसे लेके आएंगे, नहीं हम कॉमन ही लेंगे. देखो इसको हम पहले एक्सपेंड करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, ये जो 4 है ना इधर, इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख देंगे. यहाँ पे 4 है ना, इसको क्या लिखा 3 प्लस 1. ठीक है, अब देखो जो मेरी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इनमें से 3 कॉमन आ जाएगा, आएगा ना. सो इट विल बी a स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 3, देन अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट के बाहर ये प्लस 1 एक और है हमारे पास. ठीक है, अब इस पूरे को, इसको हम क्या मान लेंगे m, सो a स्क्वायर विल बी व्हाट 3m प्लस 1 वेयर m इज व्हाट 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1. अब देखो जब हमने इन तीनों केसेज को सोल्व कर दिया, सो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर स्केयर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारा स्केयर आ रहा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, वो किस फॉर्म में आ रहे हैं एज
3m और 3m प्लस 1, कुछ भी करके ना जब हम स्केयर कर रहे हैं तो हमारा आंसर या तो लास्ट में 3m आता है या फिर 3m प्लस 1 आता है. सो दिस इज द वे यू विल बी सॉल्विंग. देखो एक एक करके ना कंप्लीट स्टेप्स पे ध्यान दिया करो. हमने जब स्टार्ट किया था अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स की स्टेटमेंट से स्टार्ट किया था. यूक्लिड्स ने बोला कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इट इज आइदर ऑफ द फॉर्म a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r क्या होता है, लेस देन b. ओके, जीरो के इक्वल हो सकता है बट लेस देन b होता है. ठीक है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b गिवन, b की वैल्यू क्या थी हमारी 3. देन पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आएंगे 0, 1 एंड 2. ओके, देन वी कैन राइट it in the form of when r equal to 0, r equal to 1, but this time it is asking for square also. ओके, तो स्केयर के लिए बोला है तो स्केयर करना है, क्यूब के लिए बोलेगा तो क्यूब करना है. लाइक इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला रीड करोगे ना, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं. देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उसमें क्या बोला हुआ है उसने क्यूब के लिए बोला है. तो इस बार हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे. लास्ट वाले में स्केयर बोला था तो स्केयर किया. थर्ड या सेकंड वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें उसने कुछ नहीं बोला था तो हमने कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट उनको स्टेटमेंट्स लिखा, उसमें से कौन कौन सा ओड हो सकता है वो लिख दिया. बट फोर्थ में स्केयर, देन फिफ्थ वन क्यूब, तो वो करना है. और उसके बाद फिफ्थ वाले में आंसर क्या आएगा, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, है ना. तो उसको उसी तरह से अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते चले जाना. फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. अब इसमें देखो, अगर तुम क्या करोगे, यूक्लिड्स के अकॉर्डिंग ना उसने क्या बोला है कि यू कैन टेक a इक्वल टू, हाँ, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. और क्वेश्चन में तुम लोगों को बोला है आइदर 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसमें आंसर आना चाहिए. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b यू विल बी टेकिंग. अब देखो यहीं पे तुम लोग प्रॉब्लम करोगे. अगर तुम b की वैल्यू 9 ले लोगे ना, देन पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या Sir, आएंगे, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तुम्हारे पास टोटल केस कितने बन जाएंगे, 9. इंक्लूडिंग 0 इट विल बी 9 केसेज. 9 केसेज को सॉल्व करने अगर बैठोगे ना तो सीबीएसई में बस 3 ही नंबर का क्वेश्चन करके आओगे, यही वाला. इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा. ठीक है. और ऊपर से क्यूब करना है तो फिर तो ये लगा लो 8-10 सीट ना बस इसी में भर दोगे. तो ऐसा नहीं करना है. देखो 9 ना तुम लोगों को पता है, देखो अगर कोई प्राइम फैक्टर्स करते हैं, जब भी हमारे पास ना प्राइम नंबर नहीं दिया होता है, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो इसके अगर प्राइम फैक्टर्स करते हैं, व्हाट वी कैन गेट, क्या मिलेगा, 3 मिलेगा ना. सो बी की वैल्यू को ना 3 ले लेना जब भी प्राइम नंबर ना दिया हो. लास्ट क्वेश्चन में क्या था, उसमें 3m और 3m प्लस 1 था हमारे पास ना, हमने डायरेक्टली क्या किया, b की वैल्यू को 3 लिया, है ना, बिकॉज 3 इज व्हाट, अ प्राइम नंबर. बट यहाँ पे 9 क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 9 को डायरेक्टली नहीं लेके चलेंगे, वो बहुत टफ हो जाएगा. पॉसिबल रिमाइंडर्स जब अगर तुम्हें लग रहा हो ना तुम्हारे पॉसिबल रिमाइंडर 5-6 से ज़्यादा जा रहे हैं, देन डोंट टेक दिस वन, उसका कोई प्राइम फैक्टर ले लो. हाँ, अगर 4-5 आते हैं ना, मान लो b की वैल्यू तुम लोगों को 4 लेना पड़ जाए या 6 लेना पड़ जाए, तब भी चलेगा, 7 तक भी चलेगा. ठीक है. लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ जा रहे हैं ना तो उसका कुछ प्राइम फैक्टर, कुछ अल्टरनेटिव सोच लेना. ठीक है. ऐसा नहीं करना है कि उसको हाँ मैं 8 तक करने बैठूंगा, आज मैं यही करके रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं करना है. ठीक है. तो b की वैल्यू को 3 लेना. पॉसिबल रिमाइंडर्स फिर क्या क्या बचेंगे, 0 आएगा, 1 आएगा और 2. ओनली 3 केसेज विल बी देयर, 3 ही केस आएंगे, तीनों में क्यूब करो, आंसर आएगा 9m, 9m प्लस 1 और 8 की फॉर्म में. ठीक है. एक बार इधर देखो, जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, उसमें तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए, आइदर इट शुड बी ऑफ द फॉर्म व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, उसने क्यूब की बात बोली है. सो इट शुड बी 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, है ना. दीज आर द 3 फॉर्म्स, मतलब तुम्हारा आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए एट द एंड. नाउ वी विल स्टार्ट अगेन विद यूक्लिड्स. हाँ, सो अकॉर्डिंग to Euclids,
उसी से स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड. सो a will be equal to bq plus r. And as I have already told, don't take any value of b as 9 मत लेना, possible remainder बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. So take b equals to 3. So b will be equal to 3. That means possible remainders, possible r जो आएंगे, either it will be 0, 1, 1 2. or 2. Okay, now the first case, when we are having case first, when r is equal to 0, if r is 0, then a will be equal to what? 3q, है ना? 3q plus 0 we will be writing, it will be 3q only. So a equal to 3q. Now this time, as in the question, you can see it is asking for cube of a number, है ना? So that means we will be doing what? Cube, take cube of both sides. Sir, here b is equal to 9. It will not come, sir. No, I told you na, if you will take b equals to 9, possible remainders will be very much 0 to 8, then you will be solving this one only. So a equal to 3q, first case, huh? So that means now you, if you are doing the cube, so a cube equal to what? 3q whole cube. So it will be a cube will be what? 9q q, sorry, 27 q cube. So it will be a cube will be 27 को हम लिख सकते हैं ना 9 into 3q. Yes, sir. So a cube will be what? It will be 9 multiplied by m. Okay, 9m. Where m is what? यहाँ पे लिखना होता है ये भी. Where m will be 3q cube. m की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखना होता है. ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग, जब हम इसको सेकेंड केस में क्या लेने वाले हैं? केस 2, when r is equal to 1, then a will be 3q what? plus 1. 3q plus 1. Again you will be doing what? Cube of both sides, है ना? Cube of both sides. So taking cube, it will be a cube equal to 3q plus 1 whole cube. Okay, then we are using the identity here. Identity is a plus b whole cube, and it is a cube plus 3ab bracket a plus b and plus A plus B. b cube. Yes. Okay, this is the identity. You can open it, मतलब extended form में भी यूज कर सकते हो. You can have 3a square b plus 3ab square ना, उस फॉर्म में भी यूज कर सकते हो और इसमें भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन यूज एनी फॉर्म. ठीक है, तो इसको यूज करते हैं. देखो, इट विल बी a क्यूब इक्वल टू, नाउ इन प्लेस ऑफ a वी आर हैविंग 3q, सो इट विल बी 27q क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे ये 3 है ना, 3ab, सो 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या लिखेंगे? 3q 3. into b will be 1, and then it will be what? a plus b, 1 cube. 3q plus 1. Okay, plus b cube. Now b is what we are having as b? 1. So 1 cube will be 1. Now from the first and second term, देखो जो हमारी ये फर्स्ट टर्म है इधर और ये हमारी सेकेंड टर्म है, कैन आई टेक 9 कॉमन फ्रॉम बोथ? सो इट विल बी 9. Yes, sir. अंदर क्या बचेगा? 3q क्यूब प्लस, यहाँ पे देखो 3 और 3, ये दो 3 है ना, 3 3 जा 9, कॉमन हो गया, वो क्या बचेगा इधर? q, 3q plus 1 and then plus 1. now take this as m, ये जो पूरा है ना इसको क्या ले लेंगे? m. so it will be 9m plus 1, where m is what? 3q It is 3q plus cube 2 plus bracket q 3q plus 1. 3q plus 1, that is m. Okay, this is we are taking as the second case. Second case में हमारा ये हो गया. Now the third one. Third case is when r is what? 2. So a will be what? 3q plus 2. Again we will be doing what? Cube of both sides. दोनों sides फिर से cube करेंगे. So it will be a cube. Now I am putting the direct identity. हाँ, तुम लोगों को पता है a plus b whole cube. So it will be 27q cube plus 3 3 जा 9 2 जा 18
q bracket 3q plus 2. ओके, आई एम यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है ना सेम आइडेंटिटी आई एम यूजिंग. सो प्लस 2 क्यूब विल बी 8. नाउ टेक 9 कॉमन, इनमें से 9 कॉमन ले लो. सो 9 ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 2q ब्रैकेट 3q प्लस 2 and plus 8. Now take this complete as what, m. So a cube will be what, 9m plus 8, where the value of m is what, 3q cube plus 2q bracket 3q plus 2. This is the complete answer we are having. ठीक है. नाउ एट द एंड, लास्ट में एक लाइन और लिखनी होती है. जब ये सब कर लोगे ना, ऑल द आफ्टर ऑल द पॉसिबल केसेज, उसके बाद यहाँ पे ना क्वेश्चन में से ही लिखना होता है. क्या लिखा हुआ है देखो, ये शो दैट की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर फॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So here we will be writing it. Therefore the cube of any positive integer is of the form 9m, जगह नहीं बची है, 9m plus 1 और 9m plus 8. ये क्वेश्चन में से ही लिखना होता है. ठीक है. सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, इस तरह से तुम लोग इसको लिख सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, sir.